کراچی کے علاقے صدر میں گل پلازا میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری۔ آتش زدگی سے 6 افراد جاں بحق اور 30 سے زیادہ زخمی، 11 افراد کی حالت تشویشناک، عمارت کا ایک حصہ منہدم، متعدد افراد کے تاحال پھنسے ہونے کی اطلاعات۔ پاک بحریہ کے فائر ٹینڈرز بھی آگ بجھانے میں مصروف۔ بلاول بھٹو زرداری کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار افسوس۔ گورنر کامران ٹیسوری کا تاجروں کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ، ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ۔ وزیراعظم کا کراچی میں آتش زدگی سے جانی نقصان پر اظہار افسوس، جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں۔ متاثرہ تاجروں اور دیگر افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے۔ ریسکیو آپریشن میں تمام متعلقہ ادارے مل جل کر کام کریں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا گل پلازا میں آتش زدگی کے واقعے کا سخت نوٹس۔ کمشنر کراچی کو آتش زدگی کی وجوہات معلوم کر کے تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی غفلت یا لاپرواہی ثابت ہونے پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ آگ سے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار، لواحقین سے ہمدردی۔ دفاع وطن کے لیے مسلح افواج کی بھرپور تیاریاں۔ اس مرتبہ دشمن کو ملنے والا سرپرائز دنیا کو حیران کر دے گا۔ بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت۔ فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشنز میں شامل۔ فضائی اور زمینی طاقت کے ساتھ دشمن کے دفاع کو تہس نہس کرنا مشترکہ جنگ کا بہترین نمونہ ہے۔ افواج پاکستان کی مشقیں جدید ٹیکنالوجی، تباہ کن فائر پار اور انتہائی درست نشانہ بندی کی صلاحیتوں کا مظہر۔ امریکی فوج بھی پاک فوج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کی معترف۔ سینٹ کام کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ پر قومی انسداد دہشت گردی مرکز پبی میں پاکستان کے ساتھ مشترکہ مشق۔ انسپائرڈ گمبٹ دفاعی تعلقات میں نئی جہت قرار۔ پاکستان اور امریکی افواج کی مشترکہ مشق سے دفاعی شراکت داری مزید مستحکم۔ مشترکہ مشق میں انفینٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملیوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ مشق سے دونوں ملکوں کی افواج میں باہمی اعتماد، ہم آہنگی اور عملی تعاون کو مزید مضبوط کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ۔ بھارت امریکہ تعلقات شدید تناؤ کا شکار۔ عالمی میڈیا نے مودی حکومت کے شائننگ انڈیا دعووں کی قلعے کھول دی۔ امریکی جریدے فارن افیئرز کے مطابق مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد امریکہ اور بھارت کے تعلقات بدترین مرحلے پر پہنچ گئے۔ پاکستان نے ٹرمپ کی جنگ بندی میں کردار کو سراہا جبکہ بھارت نے اسے مسترد کیا۔ بھارت ایک جانب امریکی ثالثی کو مسترد کرتا ہے مگر دوسری ہی جانب چین کے مقابلے میں امریکہ سے غیر مشروط حمایت کا خواہاں ہے، جو کہ دوہرا معیار ہے۔ انتہا پسند پالیسیوں کے سبب بھارت عالمی اور علاقائی سطح پر شدید تنہائی کا شکار۔ جنوبی ایشیا میں اثر و رسوخ بدتریج کم ترین درجے پر آ گیا۔ مودی کی بدنام سرکار کا علاقائی قیادت کا خواب حقیقت کی زمین پر بکھرنے لگا۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق بنگلہ دیش اور میانمار بھارتی حلقہ اثر سے نکل کر پاکستان اور چین کے قریب آ گئے۔ سفارتی تنہائی سے بھارت کو سنگین سیاسی اور جغرافیائی چیلنجز درپیش۔ خطے میں مؤثر سفارتی پالیسیوں کے باعث امن و استحکام کے لیے پاکستان کا کردار اہمیت کا حامل۔ طالبان رژیم میں افغان شرپسند وسطی ایشیا کے بعد یورپ کے لیے بھی سنگین سیکیورٹی خطرہ۔ میونخ میں دانستہ طور پر ہجوم پر گاڑی چڑھانے والے افغان شہری کے خلاف مقدمے کی باقاعدہ سماعت کا آغاز۔ واقعے میں ماں بیٹی ہلاک جبکہ متعدد افراد شدید زخمی ہوئے۔ جرمن چانسلر کا مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان مہاجرین کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان۔ پاکستان، ایران، امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک سے غیر قانونی افغان باشندوں کی گرفتاری اور ملک بدری کا عمل جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر پرتشدد احتجاجی مظاہروں کا ذمہ دار۔ مظاہروں کے دوران اموات اور حالیہ فسادات میں ملوث ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ سے تعلق رکھنے والوں نے مظاہروں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ ہم ملک کو جنگ میں نہیں گھسیٹیں گے تاہم ملکی اور غیر ملکی مجرموں کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی۔ امریکی صدر نے اپنے رد عمل میں ایرانی سپریم لیڈر کو اپنے ملک کی تباہی کا قصوروار قرار دیا۔ آیت اللہ سید علی خامنئی کے 37 سالہ اقتدار کے خاتمے کا مطالبہ، ایران میں نئی قیادت تلاش کرنے پر زور۔
और अमरीकी सदर ट्रंप का डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय ममालिक पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान। आइंदा माह से टैरिफ का इतलाक डेनमार्क समेत नॉर्वे, स्वीडन, बर्तानिया, नेदरलैंड्स और फिनलैंड पर होगा। 1 जून से यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर देने का इंतजाम। अमरीका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता, डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ की धमकियां, यूरोपीय रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास तलब। इजलास में यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 ममालिक के सफरा शिरकत करेंगे। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने इकदाम को मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने नाकाबिल कबूल करार दिया। पंजाब के पहले मुनफरिद सहूलत बाजार से आवाम को सस्ती अशिया मिलने लगी। 55,000 खानदानों के घर में चूल्हा जलने लगा। 46 सहूलत बाजारों में 9,200 लोगों को बाइज्जत रोजगार मिल गया। सहूलत बाजारों में एक साल में 8.5 करोड़ अफराद की आमद, 42.5 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मजीद 30 नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। आईसीसी अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप आज 3 मैच बिलावायो में न्यूजीलैंड और अमेरिका की टीमें मध्य मुकाबल। हरारे में जिम्बाब्वे और इंग्लैंड की अंडर 19 टीमें आमने सामने। मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। भारत का क्रिकेट जैसे जेंटलमैन खेल को आलूदा और सियासत ज़दा करने का सिलसिला जारी। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान ने टॉस के वक्त बांग्लादेशी कप्तान से हाथ न मिलाया। वाकया बांग्लादेश और भारत के दरमियान जारी कशीदगी का तसलसल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट चोलिस्तान जीप रैली की 21वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान। 10 फरवरी को ट्रॉफी की तकरीबी रुनुमाई से रैली का बाकायदा आगाज। 15 फरवरी को प्रिपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल राउंड होगा। कल्चरल नाइट और आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा। सऊदी अरब के सहरा में डाकार मोटर रैली। कतर के नसर अल अतिया ने 6ठी मरतबा रैली अपने नाम कर ली। अल अतिया लेजेंड स्टीफन पीटर हैंसल के 8 टाइटल्स के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए। रैली का 141 किलोमीटर पर मुहित आखिरी मरहला स्वीडन की मैटियास एक्सट्रोम ने जीता। अर्जेंटीना के लुसियानो बेनेवेस ने मोटरसाइकिल कैटेगरी में तारीख रकम कर दी। और फ्रांसीसी अल्प्स के दिलकश मगर सर्द खत्ते के झील एनसी एक बार फिर एडवेंचर का मरकज। झील एनसी के यकबस्ता पानी, सर्द हवा और फिसलती लहरों पर सालाना रेस। पैडल बोर्ड्स ने बुलंद हौसले, हिम्मत, तवाज़ुन और अज़्म का इम्तिहान दिया। एथलीट्स का ज्यादा ध्यान बर्फीले पानी में गिरने से बचने पर लगा रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची से, जिसके इलाके सदर में गुल प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने के लिए ताहाल कोशिशें जारी हैं। आतिशबाजी से 6 अफराद जाँ बहक और 30 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। मुतादिद अफराद के ताहाल फंसे होने की इत्तलात हैं। पाक बहरे के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने ताजरों के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा किया और रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कराची में आतिशबाजी के अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। सदर ममलकत ने कहा कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। उन्होंने हिदायत की कि सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे मुतासरा अफराद और ताजिरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करें।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची में गुल प्लाजा में लगी आग लगने के वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए हिदायत की है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम लिए जाएँ। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने ज़ख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत और उनकी जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतल्लिक़ा इदारे मिलजुल कर काम करें। उन्होंने मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत जारी की और आतिशज़दगी की वजूहात मालूम करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। आग के बायस जानी नुकसान पर वज़ीर आला सिंध ने गहरे दुख का इज़हार किया और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी अहकामात जारी किए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को इमारत में फायर सेफ्टी इंतजामात की जांच करने और फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी करते हुए कहा कि किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। कराची की मरकजी शाहरा MA जिना रोड पर तिजारती मरकज में लगने वाली आग पर 14 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग से अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं सुहेल जमाली, जो कि जाए हादसा पर हैं। सुहेल, बताएगा इस वक्त आग पर किस हद तक काबू पाया जा चुका है? देखिए, जो 1 घंटा पहले सूरत हाल थी, अब भी वही सूरत हाल है। पाक बहरिया के महकमा फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर काम कर रहे हैं। 2 बाउजन हैं और 2 स्नारकेल हैं, मगर ताहाल आग की वही सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर परफ्यूम की, कपड़ों की, आराइशी अशिया की, लेदर की, गारमेंट्स की और दूसरी चीज़ें यहाँ मौजूद है दुकानें। उसमें हर थोड़ी देर बाद आग बढ़ उठती है और इस वक्त भी वही सूरत हाल है जो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले थी। 14 घंटे गुजर चुके हैं और आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सकता है। सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और IG सिंध जावेद आलम ओडो ने अब से कुछ देर पहले यहाँ का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दुकानदारों के नुकसान का इजाला किया जाएगा और जो जहाँ बाग अफराद हैं उनसे, उनके घरानों से उन्होंने इज़हार अफसोस करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार करते हुए लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दुकानदारों के नुकसान की तलाफ़ी करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस वक्त भी 14 फायर टेंडर, 2 बाउज़र, 2 स्नारकेल, जिसमें पाक बहरिया के स्टाफ भी शामिल है, काम कर रहे हैं। जिन लोगों की शनाख्त हुई है अब तक जहाँ बाग होने वाले अफराद की, उसमें काशिफ है, फराज है, आमिर हैं, वज़ीर हैं और फ़ुरक़ान वल शौकत हैं। फ़ुरक़ान फायरमैन है जिनकी लाश अब से 1.5 से 2 घंटे पहले निकाली गई थी, सिविल अस्पताल उनके पहुंचाया गया है। और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकें, मेरे दाएं हाथ पर जो ये बिल्डिंग में जो अब भी आग लगी हुई है और इलेक्शन कमीशन की इमारत सामने है जुनूबी की, वहाँ भी मशीनरी आ गई है। पाक बहरिया का बाउज़र और फायर टेंडर यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर इससे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह ये आपको मनाजिर नज़र आ रहे होंगे कि असल में मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद है MA जिना रोड और मास्टन रोड के संगर पर मौजूद हूँ। ये 2 रोडों के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें 1400 दुकानें हैं इस शॉपिंग प्लाजा गुल प्लाजा में। ग्राउंड +3 यहाँ पर इमारतें में दुकानें बनी हुई हैं, जिसमें दुकानों की तादाद तकरीबन 1200 है। इसी फायर टेंडर, बाउज़र, फायर ब्रिगेड का अमला और पाक बहरिया का अमला इस वक्त काम कर रहा है। चूँकि यहाँ की गलियाँ तंग हैं, कुछ मुश्किलात का सामना है और कुछ पुलिस और रेंजर्स के दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अमन अमान कायम किया हुआ है। और वो अफराद जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं, उनको ज़ाहिर रास्ते में आ रहे हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने में दुश्वारी का सामना है। तो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार इसमें आसानी पैदा कर रहे हैं। इस वक्त भी जो मेरा कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये 3री मंजिल का मंजर है और आग पर काबू पाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पाक बहरिया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त वहां पर आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी वहां पर मौजूद हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक आतिशज़दगी से 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 30 से ज़्यादा जख्मी और 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सुहेल जमाली इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि खित्ते में भारत का असर कम और हमसाय ममालिक ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। खित्ते में नाम नहाद बालादस्ती का भारतीय मंसूबा नाकामी से 2 चार हो गया है।
इंतहा पसंद पॉलिसीज के सबब भारत आलमी और इलाकाई सतह पर शदीद तन्हाई का शिकार हो चुका है। मोदी सरकार को सिफारती महाज पर एक के बाद दूसरी नाकामी का सामना है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बांग्लादेश और म्यांमार अब भारतीय हल्का असर से निकलकर पाकिस्तान और चीन के करीब आ गए हैं। सिफारती तन्हाई के बायस भारत को संगीन सियासी और जोग्राफियाई चैलेंजेस दरपेश हैं, जबकि बांग्लादेश में शेख हसीना हुकूमत के खात्मे और उसकी भारत में खुद साख्ता जलावतनी के बाद वहां भारत मुखालिफ जज्बात में शदीद इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिर सिरी रदादाता ने मुताबिक भारत को बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ ताल्लुकात में पेचीदगियों का सामना है। साबिक सफारतकार के.पी. फेबिन का कहना है कि भारत हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में मुसलसल नाकाम रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक बांग्लादेश मुस्तकबिल में अपने दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब मजीद झुकाव इख्तियार कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि हालिया बरसों में पाकिस्तान की सियासी, अस्करी और माशी कामयाबियों ने इसे आलमी सतह पर एक मौसर और काबिल एतमाद मुल्क के तौर पर नुमाया कर दिया है। मार्के हक में जिल्लत आमेज शिकस्त और मुसलसल सिफारती नाकामियों के बायस भारत का खित्ते में इजारादारी का एजेंडा ज़मीं बोस हो चुका है। भारत का स्ट्रेटेजिक स्तून होने का दावा मुतजलजल। भारत अमरीका ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार। आलमी मीडिया ने मोदी हुकूमत के शाइनिंग इंडिया दावों की कलई खोल दी है। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक मई 2025 की पाक भारत जंग के बाद अमरीका और भारत के ताल्लुकात अपनी तारीख के बदतरीन मरहले पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान ने ट्रंप की जंगबंदी में किरदार को सराहा, जबकि भारत ने उसे मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर का पाकिस्तान की कामयाबी का बारहा जिक्र करना और पाकिस्तानी क़यादत के साथ गर्मजोशी भारत के लिए शदीद सफारती सुबकी का बायस बना है। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर दस्तखत से इनकार किया और भारतीय बरामदात पर भारी महसूलात आयद किए हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर भारत महज इतनी सी बात पर अमरीका से दूर हो गया है तो भारत एक मुस्तहकम और पुरएतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार नहीं। भारत अमरीका 25 साला ताल्लुकात का तासुर और अना के बायस मुतसलसल होना इस शराकत की इदाराजाती कमजोरी को जाहिर करता है। मसला अमरीकी सदर की सालिसी नहीं बल्कि बयानिए पर कंट्रोल की भारतीय ख्वाहिश है। माहिरीन इस तजाद को निशानदेही करते हैं कि भारत एक जानिब अमरीकी सालिसी को मुस्तरद करता है, मगर दूसरी तरफ चीन के मुकाबले में अमरीका से गैर मशरूत हिमायत का ख्वाहां है, जो कि दोहरा मयार है। जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम दोगली सियासत से नहीं बल्कि बराबरी पर मबनी सिफारती ताल्लुकात से ही मुमकिन है। तालिबान रजीम में अफगान शरपसंद वस्ती एशिया के बाद अब यूरोप के लिए भी संगीन सिक्योरिटी खतरा लाहक हो चुका है। अफगान तालिबान रजीम में परवान चढ़ने वाली इंतहा पसंद सोच अब सरहदों से निकलकर आलमी सतह पर बेगुनाह इंसानी जानों के लिए खतरात का बायस बन गई है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC और अरब न्यूज़ के मुताबिक जर्मनी के शहर म्यूनिख में दानिस्ता तौर पर हजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाले अफगान शहरी के खिलाफ मुकदमे की बाकायदा सामात का आगाज हो गया है। अफगानी शरपसंद की जानबूझकर हजूम को निशाना बनाने के नतीजे में एक माँ और बेटी हलाक जबकि मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हुए थे। अफगान मुलजिम पर इससे कबल भी 2 कत्ल और 44 कत्ल की कोशिशों के इल्जामात आयद हैं। जर्मन चांसलर ने वाक़े के बाद मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन इक़दामात का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि इस वाक़े से 1 माह कबल जर्मनी के शहर ऑशफेनबर्ग में एक और अफगान शहरी ने चाकू से हमला करके 2 अफराद को हलाक कर दिया था। गुज़िश्ता बरस वाशिंगटन में एक अफगान दहशतगर्द की फायरिंग से नेशनल गार्ड के मर्द और खातून एहलकार जान से गए थे। पाकिस्तान, ईरान, अमरीका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक से लाखों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का अमल तेजी से जारी है। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है, जहां से हमसाया और दीगर ममालिक को शदीद सिक्योरिटी खतरात लाहक हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने फसादात का जिम्मेदार अमरीकी सदर ट्रंप को करार देते हुए इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अमरीकी और इसराइली साजिश है। उन्होंने कहा कि पुरअमन मुजाहिरों को दानिस्ता तशद्दुद में बदला गया, सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना बनी, आम शहरियों को निशाना बनाया गया और सरकारी तनसीबात पर हमले किए गए। उन्होंने कहा कि अमरीका और इसराइल बराह रास्त फसादात की मनसूबाबंदी और अमली कार्रवाई में शामिल हैं। फसादात के सबूत अमरीकी और इसराइली शख्सियात के बयानात से सामने आ चुके हैं। अमरीकी बालादस्ती को ईरानी अवाम ने इनकलाब से आज तक नाकाम बनाया है। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि साजिशें ईरान को कमज़ोर नहीं कर सकती, हम ऐसे अनासर का भरपूर मुकाबला करेंगे। उन्होंने दो टोक कहा कि फसादात के मुल्की और गैर मुल्की मुजरिम सज़ा से नहीं बच सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के बयान के बाद रद्द अमल में कहा कि ख़ामनेई अपने मुल्क की मुकम्मल तबाही के मुजरिम और कसूरवार हैं। ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर के 37 साला इक़्तिदार के खात्मे का मुतालबा करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईरान में नई क़यादत तलाश की जाए। ट्रंप ने कहा कि अली ख़ामनेई का अब तक का बेहतरीन फैसला 2 दिन कबल 800 से ज़ायद लोगों को सजाए मौत ना देना था। ट्रंप ने कहा कि तेहरान के हुक्मरान इक़्तिदार के लिए जबर और तशद्दुद का सहारा लेते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के कायद के तौर पर उन्होंने जो कुछ किया वो ईरान की मुकम्मल तबाही और गैर मुल्की सतह पर तशद्दुद का इस्तेमाल है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मुल्क को चलाने के लिए
क़यादत को मुल्क के मामलात को सही तरीके से चलाने पर तवज्जो देनी चाहिए। डेनमार्क में हजारों लोग ग्रीनलैंड पर ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के परचम लहराए। एहतजाज का नाम हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड रखा गया। मुजाहिरीन ने खुद इरादियत का मुतालबा किया। मुजाहिरे आरहुस, आलबर्ग, ऑडेंस और ग्रीनलैंड के दारुलहुकूमत नूक में भी हुए। शदीद बर्फबारी और सर्द मौसम के बावजूद ग्रीनलैंड के अवाम अमरीकी सिफारत खाने के बाहर जमा हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे। अवाम ने बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक के एहतराम का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी दबाव के खिलाफ मुत्तहिद और वाज़ेह पैगाम दिया। मुजाहिरीन ने पुरअमन तरीके से अपनी राय और आज़ादी का इजहार किया। मुजाहिरों में पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए। और अमरीकी सदर ट्रंप ने डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय ममालिक पर आइंदा माह से 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ पर पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ का इतलाक डेनमार्क समेत नॉर्वे, स्वीडन, बरतानिया, नीदरलैंड और फिनलैंड पर होगा। उन्होंने 1 जून से यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर देने का इंदिया भी दिया। अमरीकी सदर का अपने मौक़िफ़ में कहना था कि ग्रीनलैंड आलमी सलामती के लिए कलीदी हैसियत रखता है। अमरीका के सिवा ग्रीनलैंड का दिफा कोई नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ की धमकियों के बाद यूरोपीय यूनियन ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक इजलास में यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 ममालिक के सफरा शिरकत करेंगे। यूरोपीय रहनुमाओं ने ट्रंप की धमकियों की शदीद मजम्मत की है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने इस इक़दाम को गलत करार दिया है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अमरीकी सदर की धमकियों के जवाब में कहा कि कोई भी डरावा या धमकी हमें मुतासर नहीं कर सकती, ना यूक्रेन में, ना ग्रीनलैंड में और ना ही दुनिया के किसी और हिस्से में। उन्होंने टैरिफ लगाने की धमकियों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि अगर उनकी तस्दीक हो गई तो यूरोपीय ममालिक मुत्तहिद होकर मरबूत तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने इस अज़म का अयादा किया कि यूरोप अपनी खुद मुख्तारी का एहतराम करवाना जानता है। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान को मुस्तरद करते हुए उनका मुल्क धौंस में नहीं आएगा ये कहा। जर्मन हुकूमत ने भी ऐलान किया कि वो ट्रंप की धमकियों पर बातचीत के लिए यूरोपीय शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में है। जर्मन हुकूमत ने जोर दिया कि वो मुश्तरका यूरोपीय हम आहंगी के फ्रेमवर्क के तहत इन इक़दामात के जवाब में मुनासिब फैसला करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी है। तुर्क सदारती दफ्तर ने तस्दीक की है कि खत में सदर ट्रंप ने तुर्क सदर को गजा के लिए कायम किए जाने वाले मुजवजा बोर्ड ऑफ पीस का बानी रुकन बनने की पेशकश की है। मिस्र के वजीर खारजा ने कहा है कि सदर ट्रंप का खत मौसूल हुआ जिसका जायजा लिया जा रहा है। खत में इंसानी बहरान के खात्मे, फौरी जंगबंदी और गजा में इमदादी सरगर्मियों को मुअस्सर बनाने पर जोर दिया गया है। नाज़रीन, इंडोनेशिया में छोटा मुसाफिर तैयारा परवास के दौरान गिर गया जिसमें मौजूद तमाम 11 अफराद हलाक हो गए हैं। तैयारा योग्याकार्ता से मुकासर जा रहा था जिसमें अमले के अरकान समेत 11 अफराद सवार हुए। उड़ने से कुछ देर बाद ही तैयारे का कंट्रोल रूम से राबता अचानक मुनक़ते हो गया। सर्च और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और ज़मीनी अफवाज के साथ सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया जिसके दौरान बाज़ मकामात पर मलबा और छोटी आग के आसार भी देखे गए। पहाड़ी और दुश्वार गुजार रास्ता होने के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना रहा। आपको आगाह करेंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सहूलत बाजार प्रोजेक्ट से 55,000 खानदानों के घर में चूल्हा जलने लगा। पंजाब भर में 46 सहूलत बाजारों में 9,200 लोगों को बाइज्जत रोजगार मिल गया। वज़ीर आला ने मजीद 30 नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ दिया है। मरियम नवाज ने हिदायत की कि सहूलत बाजारों को बदतरीज पंजाब के हर तहसील में कायम करने के लिए इकदाम तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आला ने कहा कि सहूलत बाजारों से सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की आसान फराहमी मुमकिन हुई है। पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सहूलत बाजारों के क़याम से न सिर्फ सस्ती और मयारी अशिया मुयसर आएंगी बल्कि रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। एक साल में सहूलत बाजारों में 8.5 करोड़ अफराद की आमद हुई और 42 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। 46 सहूलत बाजारों में सब्जियों और फलों समेत 13 अशिया खुरनोश की होलसेल निर्खों पर फराहमी से 11 करोड़ रुपए की बचत हुई। वजीराबाद, चूनिया, जड़ावाला, चिन्योट, खानेवाल, भलवाल, पत्तों की, उकाड़ा और मुजफ्फरगढ़ में भी सस्ती और मयारी अशिया फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने महकमा खजाना में ऑनलाइन टेस्ट के जरिए 100% मेरिट पर भर्तियों के इनकाद पर इत्मीनान का इजहार किया है। ऑनलाइन टेस्ट अवाम से मेरिट पर मुलाजमतों के एक और वादे की तकमील है। सोशल मीडिया एक्स पर कहना है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए शफाफ और बाकायदा निज़ाम कायम कर दिया गया है। अब बलोचिस्तान में ना सरकारी नौकरी बिकेगी और ना ही सिफारिश चलेगी। मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि बंद तालीमी इदारों की बहाली के साथ साथ नौजवानों के लिए तालीम, हुनर और स्कॉलरशिप के मौके देना हुकूमत की हिकमत अमली का हिस्सा है।
मेरिट पर भर्तियों के ये इक़दाम बलूचिस्तान में दूररस और मुस्बत नताइज के हामिल होंगे। फ्रांस में पाकिस्तान की सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने सिफारत खाना पाकिस्तान में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब किया। तकरीब में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फ्रैंकोफोन प्रोफेशनल्स के अरकान शरीक हुए। सफ़ीर ने पाकिस्तान, फ्रांस और फ्रैंकोफोन दुनिया के दरमियान कसीरुलजहती ताल्लुकात पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि हुकूमतें फ्रेमवर्क और मुआहिदे बनाती हैं, मगर दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में असल किरदार अवाम, पेशावर अफराद, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी अदा करती है। सफ़ीर ने PPRF की पेशावराना रवाबित और सकाफती तबादलों के फ़रोग में खिदमात को सराहा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तालीमी और सकाफती रवाबित के फ़रोग के लिए मारूफ प्रोग्राम होस्ट हिना सलमान ने बाकू एवर यूनिवर्सिटी में दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने यूनिवर्सिटी को वाइस डायरेक्टर बराए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मिस सेवदरसे से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक की जामियात के दरमियान तालीमी ताउन, मुश्तरका सेमिनार्स और सकाफती तबादलों पर तबादला ख्याल किया गया। हिना सलमान ने पाकिस्तानी तलबा के लिए कल्चरल डेज और पाकिस्तानी फैकल्टी के लेक्चर्स की तजवीज़ भी थी। दौरे के अख्ताम पर उन्होंने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात और लाइब्रेरी का मुआयना किया, जबकि तलबा ने इस दौरे को पाक आज़रबाईजान दोस्ती की अलामत करार दिया। और मुल्तान में शहरी तरक्की का एक और नुमायां बाब रकम होने जा रहा है। मुल्तान एवेन्यू मेगा प्रोजेक्ट पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 9 किलोमीटर तवील इस शाहरा को 2 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। मुल्तान एवेन्यू मेगा प्रोजेक्ट शहर की ट्रैफिक, खूबसूरती और माहौलियात को यकजा करने वाला मंसूबा है। ग्रीन कॉरिडोर, कशादा सड़क, बेहतरीन नकासी निज़ाम, शजरकारी और शहरी सहूलतों से आरास्ता इस शाहरा पर काम दिन रात जारी है। इंतजामिया ने ग्रीन कॉरिडोर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने, दरमियानी सब्ज हिस्से में फौरी शजरकारी और तामीराती रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत जारी की है। सैदेवाल बोसन रोड से लेके नगाना चौक तक आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम उसको डेडिकेटेड पार्किंग बनाएंगे जो कि अदर दैन सर्विस रोड होगी। और ये तकरीबन दोनों साइडों को अगर मैं मिला लूँ इस 9 किलोमीटर को, तो 1000 गाड़ी से ज़्यादा की हमारी पार्किंग होगी। साथ उसके ग्रीन बेल्ट्स बनेंगी। किसी ग्रीन बेल्ट के अंदर हम छोटा सा ओपन जिम दे देंगे, किसी ग्रीन बेल्ट के अंदर हम वॉकिंग ट्रैक दे देंगे। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपको कम से कम पाकिस्तान में इससे पहले ये ग्रीन पार्क वेज का कॉन्सेप्ट नहीं नजर आएगा। अहलिया ने मुल्तान का कहना है कि सड़क के साथ शजरकारी और ग्रीन बेल्ट मुल्तान जैसे गर्म शहर के लिए बहुत जरूरी है। तोहफा दिते मरियम साहिबा ने, असां उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत वड्डी तरक्की थी सी और उनके आसार सागू नज़र आंदे पे। सड़क बन रही है और इसको बिजनेस सिटी के लिहाज से इसको दिया जा रहा है। यहाँ पे अब सोसाइटियों में ही रिहायशी होंगी, मेन लाइन पे प्लाजे और मार्केट बनेगी, जिससे वैल्यू और अच्छी बन जाएगी। शहरियों की तवक्कात के पेश नज़र इंतजामिया का कहना है कि मंसूबे में मयार पर किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मुल्तान एवेन्यू महज एक सड़क नहीं, ये मुल्तान के शहरी मुस्तकबिल की सिमत वाज़े इशारा है। अगर रफ्तार और मयार यही रहा तो मुल्तान एवेन्यू शहर की शिनाख्त बदलने वाला मंसूबा साबित होगा। मुल्तान एवेन्यू की तामीर शहरी तरक्की का नया संग मील है, जहां जदीद सफ़र, कारोबारी मौके और बेहतरीन सहूलियात शहरियों को दस्तयाब होंगी। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। चिन्योट से फैसलाबाद तक अहम शाहरा को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत डबल कैरेजवे में तब्दील किया जा रहा है। मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद अली। फैसलाबाद से चिन्योट के मेले रहने वाली 24 किलोमीटर तवील अहम शाहरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के तरक्याती विजन का एक हिस्सा है। इस शाहरा के मुकम्मल होने के बाद फैसलाबाद, चिन्योट, सरगोदा, पुशाब, मियाँ वाली की आवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मुहैया हो जाएंगी। इस मंसूबे पर 7.5 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। रोज़ाना तकरीबन 28,000 से ज़ायद गाड़ियाँ इस सड़क से गुजरती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहाव बढ़ गया था, लेकिन डबल रोड बनने के बाद सफ़र का वक्त कम होगा और हादसात में भी वाज़ह कमी आएगी। तरीना मसला था हमारा ये को फैसलाबाद बिल्कुल हमारे नज़दीक है, लेकिन वहाँ हमारा पहुँचना बहुत नामुमकिन हुआ था रोड की वजह से। ये हम अब वज़ीर आला साहिबा का हम बहुत मशकूर हैं। स्कूल, कॉलेज और अब जब बन रहा रोड, अब थोड़ी आसानी हो रही है, आधा रोड बन गया है। कीमती गाड़ियाँ तबाह की हैं, अपनी अमलाक तबाह किया, और इससे हट के कि अपनी कीमती जानें चिन्योड़ के हर मोहल्ले ने, हर गली ने कीमती जानों का नुकसान किया है।
बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन काम हो रहा है। अल्लाह करे ये जल्दी जल्द पाए तकमील तक पहुंच जाए और चिन्योट की आवाम को सुकून मिल सके। फ्रूट सब्ज़ी मंडी का काम है, तो बड़ा मसला था रोड बनने से पहले, तो सफ़र करते हुए फ्रूट और सब्जियां काफ़ी नुकसान हो जाता था गाड़ियों। ये मंसूबा न सिर्फ शहरियों बल्कि किसानों, ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि सामान की तरसील आसान हो जाएगी और ईंधन की भी बचत होगी। मलक मोहम्मद अली, पाकिस्तान टीवी न्यूज़, चिन्योट। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा शाम से रात में चंद मकामात पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं कि आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त क्या रही। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली, जहां पर AQI 574 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में AQI 331 रहा। इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका, जहां पर AQI 272 रहा। इसी फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद है भारतीय दारुल हुकूमत कोलकाता, जहां पर AQI 220 रिकॉर्ड किया गया। इस फहरिस्त में पांचवें नंबर पर मौजूद है चीन का शहर चेंगडू, जहां पर AQI 209 रहा। और इस फहरिस्त में आखिरी और छठे नंबर पर मौजूद है चीन का शहर वुहान, जहां पर AQI 200 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से उलमाए कराम को एजाज़िया कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ज़िला ननकाना की तहसील सांगला हिल की 152 मसाजिद के इमाम पंजाब हुकूमत के इस कार्ड से मुस्तफ़ीद होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी। काना साहब की तहसील सांगला हिल में 172 मस्जिदें हैं। तहसील बार की 152 मस्जिदें वज़ीर आला पंजाब उलमा अज़ाज़िया कार्ड के लिए रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से उलमा अज़ाज़िया कार्ड जारी किए जा रहे हैं। माहवार वजीफा अज़ाज़िया दिया गया है हमें। ये हुकूमत पंजाब का बड़ा अच्छा इकदाम है। इसकी वजह से हमें माली मुआवनत भी हासिल हुई है और हम जो जिम्मेदारी हमारी मसाजिद के हवाले से ये इंशाल्लाह हम बेहतर यकसुई के साथ अंजाम दे सकेंगे। हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करने जरा उन्हें महाना आइमा कराम का वजीफा मुकर्रर किया। इमाम साहबान को अज़ाज़िया की अदायगी में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए बराह रास्त डिजिटल अदायगी होगी। अगले माह से इमाम साहबान को वज़ीर आला पंजाब अज़ाज़िया कार्ड के जरिए मुस्तकिल अज़ाज़िया मिलना शुरू हो जाएगा। इमाम साहबान अज़ाज़िया कार्ड के जरिए ATM से रकम वसूल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से इमाम मस्जिद को माहाना अज़ाज़िया की अदायगी उनकी खिदमात के खिलाफ के साथ उनकी मुश्किल माली मामनत भी है, जिससे वो ज्यादा यकसुई के साथ दीनी खिदमात सर अंजाम दे सकेंगे। मोहम्मद अनवर अंसारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सांगला हिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जिला पाकपतन की तहसील आरिफाला की 350 मसाजिद के इमाम साहिबान को एजाज़िया कार्ड दे दिए गए हैं। तफसील बताएंगे काशिफ रिजवान। तहसील आरिफवाला में 530 मसाजिद वज़ीर आला पंजाब उलमा एजाज़िया कार्ड के लिए रजिस्टर्ड हैं। तहसील भर की रजिस्टर्ड मस्जिदों के 350 इमामों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जारी करदा उलमा एजाज़िया कार्ड देने की तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में हुई, जिसमें तहसील भर से इमाम साहिबान ने शिरकत की और असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान की तरफ से
इमाम साहिबान को कार्ड दिए गए। हमारे पास 450 पे ऑर्डर्स हमें मौसूल हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 350 पे ऑर्डर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। बिलाशुबा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत ही ज़बरदस्त और मस्बत इकदाम है, जिसको हमारे जो उलमा कराम है उनकी तरफ से भी बड़ी पजीराई मिल रही है। उलमा एजाजिया कार्ड के जरिए हर इमाम मस्जिद को पंजाब की हुकूमत 25,000 रुपये माहाना एजाजिया दे रही है, जिससे इमाम मस्जिद बैंक ऑफ पंजाब के कार्ड के जरिए अपना एजाजिया घर बैठे हासिल कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से जो हमें इजाज़ी कार्ड मिला है 25-25 हज़ार रुपये हमें मिल रहे हैं, हम उनके बहुत ज़्यादा बेहद मशकूर हैं। हम बेहद मशकूर हैं मरियम नवाज साहिबा के, जिन्होंने ये आइमा मसाजिद के लिए एजाजिया कार्ड जारी किया। वज़ीर आला एजाजिया कार्ड इमाम साहिबान के वक़ार, इज़्ज़त और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक मुस्तकिल सहूलत है। चौधरी काशिफ रिजवान, PTV न्यूज़, आरिफ वाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की आवाम दोस्त पॉलिसियों के तहत लोधरा के सहूलत बाजार से फ्री होम डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी गई है। शहरी अब घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरी चीजें DC रेट से भी 7% कम कीमत पर मंगवा सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। लोधरा का सहूलत बाजार आवाम के लिए हकीकी मायनों में रिलीफ का जरिया बनता जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी गई है। इस सर्विस के तहत शहरी अब घर बैठे रोज़मर्रा इस्तेमाल की 13 से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर DC रेट से भी 7% कम कीमत पर मंगवा सकते हैं। मेरे पास आर्डर आता है जिसको सुपरवाइज़र वेरीफाई करने के बाद उसको आर्डर कंप्लीट करता है और राइडर के ज़रिए हम ये जो अशिया हैं ये ना उनके घर की दहलीज पे पहुंचा रहे हैं। सहूलत बाजार में आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, सब्जियां, मिसाला और दूसरी खाने पीने की चीज़ें DC रेट पर दस्तयाब हैं। फ्री होम डिलीवरी ने इस सहूलत को मज़ीद सस्ता और आसान बना दिया है। DC रेट से भी कम कीमत पर वो अशिया फ्री होम डिलीवरी पर ये सहूलत बाजार के एहलकार पहुँचा रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला इक़दाम है। इस मंसूबे का मकसद महंगाई के असरात को कम करना और आवाम तक बराह रास्त रिलीफ पहुँचाना है। फ्री होम डिलीवरी सर्विस सहूलत बाजार के 3 किलोमीटर इलाके में दी जा रही है, जिसे आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतर और मौसर बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। PTV अकेडमी में 2 रोज़ा डॉक्यूमेंट्री फिल्म साजी की खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका को जदीद डॉक्यूमेंट्री तकनीक और मुअस्सर कहानी सुनाने के उसूलों से रुशनास करवाया गया। तफसील बताएंगे अशफाक खान। रिवायतों के अमीन पाकिस्तान टेलीविजन अपने नाजरीन तक मयारी मवाद पहुँचाने के साथ साथ अपने प्रोफेशनल्स की तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो देता है। इसी मकसद के तहत PTV अकेडमी में डॉक्यूमेंट्री फिल्म साजी की खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस तरबियती वर्कशॉप का मकसद मीडिया प्रोफेशनल्स को जदीद डॉक्यूमेंट्री तकनीक और मुअस्सर कहानी सुनाने के उसूलों से रोशनास कराना था। साबिक जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविजन ज़फ़र इकबाल बंगश, मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर नरजस हाशमी और डायरेक्टर PTV अकेडमी सैयद ओन मोहम्मद बुखारी ने शुरकाओं को डॉक्यूमेंट्री फिल्म साजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तरबियत दी। वर्कशॉप में दुरुस्त मौजू के इंतखाब, मुअस्सर तहकीक, कहानी के तसलसल, बसरी इजहार के साथ साथ कैमरा वर्क, रोशनी, आवाज़ और एडिटिंग के जदीद तरीकों पर भी तफसीली रहनुमाई फराहम की गई। एकेडमी का काम है लोगों को सिखाना, वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। मौजूदा डायरेक्टर साहब जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस सिलसिले में। ये जो डॉक्यूमेंट्री कोर्सेज हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान एकेडमी में, टेलीविज़न की एकेडमी में, इसमें बेसिकली यही सिखाया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री कैसे प्रोड्यूस की जाती है। PTV का एकेडमी का शुक्रिया कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्री पे एक वर्कशॉप की है, जो बहुत अच्छा एहसन कदम है। हमारी काफ़ी हार्श ट्रेनिंग हुई और हमने फील्ड में भी बहुत सीखा। अच्छे प्रोड्यूसर्स, वेदर डॉक्यूमेंट्री या प्रोग्राम, ड्रामा, उसके अच्छे प्रोड्यूसर्स केटर कर सकता है। वर्कशॉप में शरीक प्रोफेशनल्स ने तरबियत को मुफीद करार देते हुए कहा कि इससे इनकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा और मयारी डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद मिलेगी। PTV ड्रामा एंड फिल्म अकेडमी में जो आज 2 दिन की वर्कशॉप हुई है, तो इस हवाले से हमारा जो डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन है और प्रोफेशनल्स के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री हुई, बड़ा मुफीद उसमें मालूमात मिली है। This is a very good initiative taken by PTV Academy and under the supervision of Information Ministry. I would like recommend you to do more often these activities. वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरका में असनाद तकसीम की गई। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर फेस्टिवल हुआ, जिसका मकसद इस्लामी तहजीब, फ़नून लतीफ़ा और मुश्तरका तारीखी वर्से को उजागर करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर उमर मलिक। इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर फेस्टिवल में इस्लामी खत्ताती, मुसव्वरी, आर्किटेक्चर और सकाफती मकालमे के जरिए फ़न और तारीख को यकजा किया गया, जहाँ फ़नकारों और शायकीन फ़न ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुख्तलिफ फ़नकारों के इस्लामी खत्ताती और मुसव्वरी के नमूने शायकीन फ़न की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। हमारे पास ऑलमोस्ट 30 आर्टिस्ट ने अपना काम इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर के गिर्द ही हमें भेजा, हमारे सबमिशन से, और बहुत ही सिलेक्टेड काम है हमारे पास जिसमें ख़त्ताती है, और वो हमने ट्रेडिशनल ख़त्ताती को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश की है। बहुत अच्छी एग्ज़िबिशन है, बहुत अच्छे फनपारे देखने को मिले, और जो किताबें हैं यहाँ पे बहुत ही सस्ती, बहुत अच्छी कलेक्शन है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। इस मौके पे फ़न खताती की अमली तरबियत भी फराहम की गई, जिसमें नौजवानों ने माहिर असातिज़ा की रहनुमाई में खताती के रुमूज़ सीखे। फेस्टिवल में मुख्तलिफ मारूफ पब्लिशर्स की जानिब से किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहाँ इस्लामी तारीख, फ़न और तहकीक से मुतल्लिक कुतुब शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बनी। इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर फेस्टिवल न सिर्फ सकाफती सरगर्मी है, बल्कि इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की एक मौसर कोशिश भी है। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। सकर में हयात मेडिकल इंस्टीट्यूट में कॉन्वोकेशन का इन्नकाद किया गया। मलिक इमरान शाहिद की रिपोर्ट देखिए। इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम आज 100 से ज़ायद तलबा को उनकी डिग्री की तकमील पर सर्टिफिकेट्स दिए गए। ये दिन तलबा के लिए एक ख़ास दिन होता है, जब उन्हें अपनी 5 साल डिग्री की तकमील के बाद उन्हें मुकम्मल एजाज़ के साथ डिग्री अता की जाती है। तकरीब में तलबा और उनके वालिदैन समेत सियासी और समाजी शख्सियात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा और तालबात पुरजोश अंदाज में शरीक हुए और अपनी डिग्री की वसूली पर खासे पुरजोश नज़र आए। हम लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं पेशेंट की, सिर्फ दवाई नहीं दे रहे, हम उन्हें मेंटली भी हील कर रहे हैं एंड फिजिकली भी हील कर रहे हैं। यही इन बच्चों से गुजारिश है कि बड़े जज्बे और खुलूस से और अपना नेक नियति से अगर इस चीज़ को, प्रोफेशनल को अगर आगे बढ़ाएंगे तो इनको ये बहुत ही ज़्यादा ही इनको फ़ायदा भी होगा। इसमें 100 स्टूडेंट्स अपने जो ना डिग्री रिसीव करेंगे। सर इसमें जो ना सिर्फ सखर के बच्चे नहीं हैं, इसमें बलोचिस्तान के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ पंजाब से भी हैं, इवन KPK से भी जो ना बच्चे यहाँ पे हैं। डिग्री की तकमील के दिन तलबा काफ़ी मसरूर हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। सेंट्रल पंजाब रीजनल एग्रीकल्चरल फोरम ने ज़राई शोबे में बाहमी ताउन के जरिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ हासिल करने के अज़्म का अदा किया है। तफसील बता रहे हैं काशिफ मुनीर। सेंट्रल पंजाब रीजनल एग्रीकल्चर फोरम ने ज़राई तहकीक, फील्ड लेवल अमल दरामद और निजी शोबों में रवाबत को मजबूत बनाने पर इत्फाक किया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर ने इजलास में जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली, फसलवार इश्तराक के फ़रोग़ देने पर जोर दिया। एक मुतफ़िका अपना कंबाइंड एक लाहे अमल बनाया है, तो इसमें हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी और फार्मर की ट्रेनिंग का और अच्छी प्रैक्टिस उसके फार्म पे इंट्रोड्यूस कराने का और उसे प्रमोट करने का प्लान हम बना रहे हैं। सेंट्रल पंजाब रीजनल एग्रीकल्चर फोरम 6 डिवीज़न पर मुश्तमिल है, जिनमें फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, गुजरांवाला और गुजरात शामिल हैं। अजलास में गंदम मुहिम 2025 को एक कामयाब मॉडल करार दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और रिसर्च डिपार्टमेंट, डिफरेंट विंग्स को मिला के कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम बनाया है, उसी सिलसिले में ये मीटिंग थी और इसमें हर क्रॉप वाइज हमने बना दिए हैं वर्किंग ग्रुप्स और उनकी भी मीटिंग्स हुआ करेंगी और सजेशंस बन के जो हैं वो थ्रू कोऑर्डिनेशन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाएंगी। फोरम ने मौसम में अपनी तब्दीली के चैलेंज और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसानों तक जदीद सिफारिशात और तहकीकी नताइज बर वक्त पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। फार्मर के जो अपना प्रॉब्लम्स हैं इस फोरम पे बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो हल होंगे और इस दफ़ा जो है वो गंदम की फसल जो है वो बड़ा एक चैलेंजिंग था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, यूनिवर्सिटी ने और सर्च ने मिलके ना सिर्फ टारगेट को अचीव किया बल्कि हम अबव दी टारगेट गए हैं। 18,34,000 के अगेंस्ट हमने 18,57,000 एकड़ पे गंदम की काश्त जो है वो अपना मुमकिन बनाई। रीजनल एग्रीकल्चर फोरम का कहना है साइंसी बुनियादों पर ज़राई तरक्की और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। ज़राई तरक्की के लिए तहकीक को अमली शक्ल देना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि किसानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच सके। काशिफ मुनीर, PTV न्यूज़, फैसलाबाद।
محکمہ زراعت آزاد کشمیر نے مظفرآباد کے علاقے گڑی دوپٹہ میں پہلی بار ادرک کی کامیاب کاشت کا تجربہ کیا۔ اس سلسلے میں گڑی دوپٹہ ریسرچ سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات بتائیں گے عادل احمد خان۔ محکمہ زراعت آزاد کشمیر، ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد اور نشتر انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے اشتراک سے آزاد کشمیر میں پہلی مرتبہ ادرک کی کامیاب کاشت کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر گڑی دوپٹہ ADR ریسرچ سینٹر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں محکمہ زراعت کے حکام، کسانوں اور زراعت سے دلچسپی رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ کسانوں کی معاشی خود مختاری اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے ضلع مظفرآباد کے علاقے گڑی دوپٹہ میں پہلی مرتبہ ادرک کی باقاعدہ کاشت کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی گئی ہے، جو کہ علاقائی زراعت کے لیے خوش آئند ہے۔ امید ہے کہ ہم اپنی اس فرسٹ ایڈاپٹیشن کے غلطیوں کو بہتر کرتے ہوئے نیکسٹ ایئر یہ فصل جو ہے وہ زمینداران کو بھی دستیاب ہوگی، اور اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے کیونکہ یہ ہمارے اس سے پہلے ہم تقریباً ساری 99% ہم جو ہے وہ امپورٹ کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کا امپورٹ بل کم ہوگا بلکہ زمینداران کے لیے بھی معاشی اسٹیٹس جو ہے وہ بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ زرعی ماہرین کے مطابق ٹنل فارمنگ کے ذریعے نہ صرف ادرک کی پیداوار میں نمایاں اضافہ متوقع ہے بلکہ کسانوں کی آمدن میں بھی خاطر خواہ بہتری آئے گی۔ محکمہ زراعت آزاد کشمیر ٹنل فارمنگ کے جدید طریقے اپناتے ہوئے مقامی کسانوں کے اشتراک سے ادرک کی جدید بنیادوں پر فارمنگ کا باقاعدہ آغاز کرے گا۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، گڑی دوپٹہ، ضلع مظفرآباد۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صوفی، درویش، ایک صاحب کمال شخصیت اور جہاں ساز مرشد، صوفیانہ انداز فکر کے لکھاری، شاعر اور کالم نگار واصف علی واصف کی آج 33ویں برسی ہے۔ ان کے ادبی مقام اور حلقہ اثر کے حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے وردہ سلیم کی یہ رپورٹ۔ اہل علم و ادب کی بات ہو تو حضرت واصف علی واصف کے کلام اور ان کی تحریریں ذہن میں آتی ہیں۔ تصوف کے پہناوے میں زبان و ادب، معاشرتی اخلاق اور اصلاحی طرز میں لپٹی ان کی تحریریں قاری کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام اور نثر میں جامع کلمات کے ذریعے علم و حکمت کی طرف رہنمائی پھیلائی۔ وہ خوشاب کی سرزمین پر پیدا ہوئے، 1954 میں سول سروس امتحان پاس کیا، مگر طبیعت میں درویشی کے سبب انہوں نے سرکاری نوکری نہیں کی۔ لاہور میں ایک تدریسی ادارہ قائم کیا جہاں علم و ادب سے متعلق شخصیات کے علاوہ فقراء، ملنگوں اور درویشوں کی بیٹھک بھی رہی۔ واصف علی واصف کے رشد و ارشاد میں دلچسپی اور ان کے کلام کی تاثیر کے سبب ان کا حلقہ اثر پھیلتا گیا۔ میں خبر کے دام کا نام ہوں، میں خرد کدے کا امام ہوں، میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں۔ میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضی، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں صدا بہار کی بات ہوں۔ یہی ایک درویش اور ایک فقیر کا اثاثہ ہوتا ہے کہ اس کی کہی بھی بات جو ہے وہ زمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ محبت کے نام سے نوائے وقت میں ان کے کالم سے امن، محبت، انسانیت، اخلاق و تربیت کی روشنی پھیلتی گئی۔ ان کی 40 کے قریب کتب ہیں جن میں حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، بات سے بات، گفتگو، دریچے کے علاوہ ایک انگریزی کتاب، 2 شعری مجموعے بھی شامل ہیں۔ واصف علی واصف لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں مدفون ہیں۔ واصف علی واصف کی تحریریں علم و اخلاق کی کرنیں آج بھی اپنا اثر پھیلائے ہوئے ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ معروف افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کو ہم سے بچھڑے 71 برس بیت گئے، مگر ان کی تحریریں آج بھی زباں زد عام ہیں۔ سعادت حسن منٹو کی برسی کے موقع پر دیکھیے لاہور سے شمائلہ شبیر کی رپورٹ۔ سعادت حسن منٹو افسانہ نگاری میں ایک معتبر نام، جنہوں نے اپنے منفرد انداز بیاں سے افسانہ نگاری کو ایک پہچان دی۔ 11 مئی 1912 کو بھارت کے شہر لدھیانہ میں پیدا ہونے والے سعادت حسن منٹو کا تعلیمی کیریئر قابل ذکر نہیں تھا، تاہم اس کے باوجود انہوں نے زمانے کے نبض شناس کی حیثیت سے زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے انسانی نفسیات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا اور اپنی تحریروں میں انسانی رویوں کی منظر کشی کی۔ سعادت حسن منٹو کہتے تھے کہ وہ افسانہ نہیں لکھتے بلکہ افسانہ انہیں لکھتا ہے۔ منٹو کے افسانے، مضامین اور خاکے اردو ادب میں شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی تلخ مگر حقیقت پر مبنی تحریریں آج بھی زبان زد عام ہیں۔ منٹو کے افسانے محض واقعاتی نہیں بلکہ ان میں معاشرے کے تضادات کی داستان ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں بے باک کرداروں کو موضوع بحث بنایا، جن پر انہیں مختلف حلقوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ توبہ ٹیک سنگھ، ٹھنڈا گوشت اور کھول دو ان کی بہترین تحریریں جانی جاتی ہیں۔ ان کے خاکوں میں گنجے فرشتے، لاؤڈ سپیکر اور دیگر شہرۂ آفاق تحریریں شامل ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے نہایت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری،
मगर अपनी इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं किया। वो 18 जनवरी 1955 को इंतकाल कर गए, मगर उनके बेमिसाल अफसाने आज भी उनकी याद ताज़ा किए हुए हैं। शुमाइला शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और टेलीविजन और सिल्वर स्क्रीन के नामवर अदाकार गुलाब चांडियों को बदाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। उनकी फनी जिंदगी पर देखते हैं हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गुलाब चांडियो, जिनका खानदानी नाम गुलाम मोहम्मद गुलाब था, वो 6 जनवरी 1958 को नवाब शाह के गांव शहमीर चांडियो में पैदा हुए। 1980 की दिहाई में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से नश्र होने वाले सिंधी ड्रामों से अपने फनी करियर का आगाज किया। उन्होंने मुतादिद उर्दू ड्रामों में भी अपनी शानदार अदाकारी से तवील अरसे तक नाजरीन को अपना गर्विदा बनाए रखा। गुलाब चांडियो की बेसाख्ता अदाकारी और मुनफरिद अंदाज में जुमलों की अदायगी की वजह से वो बहुत जल्द फनकार कबीले में मकबूल हो गए। हाजी खान, बेटी का रिश्ता मांगना कुछ खरीदने की तरह है क्या, जो कीमत लगाई और ले ली। पाकिस्तान टेलीविजन से नश्र होने वाले जिन मकबूल ड्रामों में गुलाब चांडियो ने यादगार अदाकारी की, उनमें जीनत, रविश, नूरी जाम तमाची, टीपू सुल्तान और सागर का आंसू काबिल जिक्र हैं। गुलाब चांडियो ने स्टेज और सिल्वर स्क्रीन पर भी अपने फन का लोहा मनवाया। उनकी मकबूल फिल्मों में दुश्मन, मुहिब शीदी और सरगम अवाम में बहुत मकबूल हुई। 2016 में गुलाब चांडियो को सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। 18 जनवरी 2019 को मुख्तसर अदालत के बाद वो कराची में इंतकाल कर गए। ताहम फन अदाकारी में शानदार काम की निस्बत से गुलाब चांडियो को तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, यूनान में बिल्लियों से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। यूनानी दारुल एथेंस में बिल्लियों का खूबसूरत पार्क, जहां बिल्लियों के लिए बेहतरीन रिहायशी घर और उनके खाने पीने के अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। यूरोप के इस मुनफरिद पार्क में बिल्लियों के दर्जनों खूबसूरत घर बनाकर पार्क में रखे गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे यूनान से नुमाइंदा PTV जफर शाही। जी नाजरीन, मुख्तलिफ ममालिक में जो हुकूमतें हैं वो अपनी आवाम की तफरीह के लिए पार्क जो है वो तमीर करती है, लेकिन यूनानी हुकूमत ने यूनानी दारुल हुकूमत एथन के अंदर जो है एक खूबसूरत पार्क जो है वो तमीर किया। और ये पार्क इंसानों के लिए नहीं बल्कि बिल्लियों के लिए जो है तमीर किया गया। और इस पार्क के अंदर दर्जनों बिल्लियों के मकानात जो है वो तमीर किए गए, वो रखे गए हैं। और इन मकानात के अंदर बिल्लियों के आराम के लिए मुख्तलिफ जो कंबल के टुकड़े हैं वो रखे गए ताकि बिल्लियां जो है वो सर्दी से जो है बच सके। और इंसानों का दाखिला इस पार्क के अंदर जो है वो मना है। इस वक्त यूनान में शदीद सर्दी जो है वो जारी है और इस सर्दी से बचाव के लिए ये जो मकानात है छोटे छोटे जो वहाँ बिल्लियों के लिए रखे गए और उनको हर किस्म का बाकायदा जो है माहौल जो है वो तैयार करके वहाँ जो है वो दिया गया है। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 3 मैच खेले जा रहे हैं। इवेंट के 11वें मैच में अफगानिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त सिखाया जा रहा है। विंडहोक में खेले जा रहे मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अफगान टीम की जानिब से खालिद अहमद ज़ई और उस्मान सादत ने इनिंग्स का आगाज़ किया। ग्रुप बी के मैच में अमेरिका की न्यूजीलैंड के खिलाफ बुलाबायो में बैटिंग जारी है, जबकि हरारे में इवेंट के 10वें मैच में मेजबान जिम्बाब्वे की टीम इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग कर रही है। और नाजरीन, बांग्लादेश ने ICC को वाज़ेह पैगाम दिया है कि उनकी टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। ढाका में ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इजलास हुआ, जिसमें ICC का वफ्द बांग्लादेश को भारत जाने के लिए कायल न कर सका। मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हुकूमती हिदायत और सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत नहीं जा सकते। इजलास में बांग्लादेश का ग्रुप तब्दील करने समेत मुतअद्दिद मामलात ज़ेर गौर आए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC को एक मरतबा फिर दरख्वास्त की है कि T20 वर्ल्ड कप में उनके मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल किए जाएं। BCB ने हुकूमती हिदायत, सिक्योरिटी खदशात, बांग्लादेशी शायकीन और मीडिया की आरा भी पेश की और कहा कि क्रिकेट टीम भारत नहीं जा सकती।
जीप रैली के शायकीन हो जाएं तैयार। पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट चोलिस्तान जीप रैली के 21वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में दौड़ती, बल खाती और धूल उड़ाती गाड़ियां शायकीन देख सकेंगे। 21वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली में 10 फरवरी को ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई से रैली का बाकायदा आगाज होगा। 11 फरवरी को रैली में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और तकनीकी मुआयना, जबकि 12 फरवरी को तमाम कैटेगरीज के क्वालिफाइंग राउंड होंगे। 13 फरवरी को मर्द और खवातीन ड्राइवर्स की प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड की रेस होगी। 14 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले, जबकि कल्चरल नाइट और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। 21वीं चोलिस्तान जीप रैली के आखिरी दिन 15 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड डर्ट बाइक रेस, कॉड बाइक रेस और ट्रक कैटेगरी की रेस होगी। तुर्बत में 12 रोजा केच स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के दिलचस्प मुकाबले हुए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के अलावा ईरान की टीमों ने भी शिरकत की। इख्तितामी तकरीब का मरकज़ी निगाह हाजी लियाकत क्लब कराची और DC-11 केच के दरमियान सनसनीखेज फुटबॉल मैच रहा। रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम और दिलकश आतिशबाजी ने समा बांध दिया। सूबाई वजीर ज़हूर बलेदी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। ज़िले इंतज़ामिया, मुअज़्ज़िज़ीन और सियासी और समाजी शख्सियात समेत हज़ारों शायकीन ने भी शिरकत की। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कतर के नसर अल अतिया ने 6ठी मरतबा डाकार रैली अपने नाम कर ली। अर्जेंटीना के ल्यूसियानो बेनाविडेस ने मोटरसाइकिल कैटेगरी में तारीख रकम कर दी। रैली का आखिरी मरहला 141 किलोमीटर पर मुहित था। स्वीडन के मेटियास एक्सट्रोम ने मुकर्ररा फासला 46 मिनट और 14 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। जनरल स्टैंडिंग्स में नसर अल अतिया स्पेन के नैनी रोमा पर 2 मिनट और 40 सेकंड की मजमूई बरतरी के साथ टाइटल जीतने में कामयाब रहे। ये उनकी 2011, 2015, 2019, 2022 और 2023 के बाद 6ठी कामयाबी है। इस फतह के साथ वो अब लेजेंड स्टीफन पीटर हैंसल के 8 टाइटल्स के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। बाइक कैटेगरी में अर्जेंटीना के ल्यूसियानो बेनाविडेस ने अमेरिका के रिकी ब्रेबेक पर सिर्फ 2 सेकंड की बरतरी के साथ कामयाबी हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। और नाज़रीन, फ्रांसीसी एल्प्स के दिलकश मगर सर्द खित्ते में वाक़े झील एनसी एक बार फिर जुर्रत और एडवेंचर का मरकज़ बन गई। झील एनसी के यख बस्ता पानी पर सर्द हवाओं और फिसलती लहरों के दरमियान सालाना रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए पैडल बोर्डर्स ने हिस्सा लिया। सर्द मौसम में मुनक्किद होने वाली इस मुनफरिद रेस में शुरका ने खुसूसी थर्मल सूट्स पहनकर झील के बर्फ जैसे पानी पर पैडल बोर्डिंग की। जरा सी लग़्ज़िश खिलाड़ी को शदीद सर्द पानी में गिरा सकती थी, जिसने मुकाबले को मजीद सनसनीखेज बना दिया। करीबन मुंजमद दर्जे हरारत, बर्फानी हवाएं और यख पानी के बावजूद खिलाड़ियों का जोश दीदनी रहा। सर्दी के खिलाफ ये मुकाबला सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि पैडल बोर्डर्स की हिम्मत, तवाज़ुन और अज़म का इम्तिहान था। एथलीट्स का ज़्यादा ध्यान बर्फीले पानी में गिरने से बचने पर लगा रहा। रेस ने साबित किया कि शदीद सर्दी में भी खेलों के जज्बे को मुंजमद नहीं किया जा सकता। और नाज़रीन, खेल की खबरों का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि स्पीड स्केटिंग भी जारी है और उससे पहले हमने आपको पैडल बोर्डिंग के हवाले से भी आगाह किया है। खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।